Hello everyone, welcome to the Maitri Show Between Friends. In this show, we will be talking about different issues related to intimate partner violence, family violence and abuse, gender-based violence, and power dynamics in relationships. The goal of our show is to engage our community members in addressing and challenging those harmful social and cultural conditions, norms that make intimate partner violence, family violence and abuse, and other gender-based violence acceptable. We believe our show Between Friends will mobilize our community in ending victim blaming and preventing violence and abuse in partner and familial relationships. In each episode, we will be providing insights and resources that will not only help victims and survivors, but also educate our community members about these issues. These resources and that are available in the community so that they can help someone in need. Tune in every Saturday from 3 to 4 p.m. on Radio Zindagi to listen to the Maitri Show Between Friends. You can also find all episodes of Maitri's Between Friends on our website, Maitri Bay Area Facebook page, and on SoundCloud. You can email your suggestions and feedback to us at maitri@maitri.org. Together, we can end domestic violence, intimate partner violence, and gender-based violence. Maitri does not endorse any businesses, including but not limited to legal attorneys, financial advisors, and tax consultants that may be advertised before or after the show. Listeners are advised to use their own discretion. This show is for informational purposes only and is not to be construed as legal advice. Always consult an attorney for legal advice. Views expressed by guests of the radio show are individual opinions and not endorsed by Maitri. You are listening to Maitri's radio show Between Friends, and in this episode, we will be discussing legal issues that survivors of domestic violence, especially survivors from marginalized communities, face. When someone is going through familial violence or partner violence and abuse, seeking out legal help or understanding legal system can be problematic. Finding right attorneys, having right kind of legal guidance, understanding of individuals' rights and options can have a huge impact on each case. In this episode, we want to focus on those legal matters, information, and resources that can help in reducing the occurrence of domestic violence or the repetition of the abuse or violent incident. To be consistent with our organizational policy that is providing language access to South Asian immigrant survivors, we have decided to do some of our episodes in South Asian languages. So we are presenting today's show in Hindi. We have Nishtha Jolie, who is a family law attorney, as our guest, and she will have conversation with our outreach program staff, Daman Tiwana. They will be having this conversation in Hindi. Enjoy. अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हैं जो घरेलू और डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रहे हैं, कृपया मैत्री से संपर्क करें। मैत्री की सेवाएं बिल्कुल मुफ्त और विश्वसनीय हैं। हमारी सेवाएं हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती और अन्य दक्षिण एशियाई भाषाओं में उपलब्ध हैं। You can call us Monday to Friday 9 to 3 p.m. on 188-862-4874 for after hours leave voicemail in your language. You can also email us at maitri, maitri@maitri.org. हेलो लिसनर्स, ये है मैत्री शो बिटवीन फ्रेंड्स और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल अटर्नीज। हमारे साथ आज शो पे है निष्ठा जॉली। निष्ठा एक फैमिली लॉ अटर्नी है जो मेनली बे एरिया में काम करती है। वेलकम टू मैत्री शो निष्ठा। हाय दमन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हमारी डिस्कशन शुरू करने से पहले क्या आप लिसनर्स को अपने बारे में और अपने काम के बारे में थोड़ा बताएंगी आज? श्योर। मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ। मैं यहाँ पे हमने मूव किया जब मैं 14 साल की थी। आई वेंट टू स्कूल हियर एंड आई वर्कड विद नॉन प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 20 years. ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे को महसूस हो रहा था कि यहाँ
स्पेशली बे एरिया में हमारी पॉपुलेशन, साउथ एशियंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे इश्यूज जो हैं वो भी थोड़े यूनिक हैं, हमारे कल्चर से थोड़े यूनिक हैं. तो आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली द वे आई कुड हेल्प a lot more people is by going to law school. So that's what spurred me on to go to law school. और लॉ स्कूल के बाद फिर मैंने एक एजेंसी में काम किया जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स और विक्टिम्स को वो बहुत हेल्प करते थे. और फिर मैंने उस एजेंसी में जाके मैंने देखा कि एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम हमारी कल्चर में काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी यूनिक है, क्योंकि हमारा कल्चर थोड़ा ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है और हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस की ज़्यादा बातें नहीं करते फैमिली के बाहर. तो आई रियलाइज्ड कि काफ़ी फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम हो रही थी और हम लोग उस बारे में बात नहीं कर रहे थे. तो लोग सफ़र कर रहे थे साइलेंस में. तो आई डिसाइडेड कि आई वाज गोना ओपन अ प्रैक्टिस जहाँ पे मैं डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स की हेल्प करती हूँ. सो दैट्स व्हाट आई डू नाउ. मेरी प्रैक्टिस सर्वाइवर सेंटर्ड है. तो मैं जनरल फैमिली लॉ नहीं प्रैक्टिस करती. दैट मीन्स कि मैं मतलब डिवोर्स वगैरह नहीं लेती, डिवोर्स के केसेस नहीं लेती, लेकिन मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के केसेस लेती हूँ. मीनिंग कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहा हो और उनको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर चाहिए हो तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ. एंड आई रियलाइज्ड कि हमारी पॉपुलेशन में इमिग्रेशन की भी ज़रूरत ज़्यादा है, स्पेशली उन लोगों को जिनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस के इशू हो रहे हों. So I also help folks with immigration issues if they are facing domestic violence. Thank you, निष्ठा. तो आज पहली चीज़ जो हमारे क्लाइंट्स और लिसनर्स जानना चाहेंगे वो ये है कि ऐसी कौन सी ज़रूरी जानकारी है जो क्लाइंट्स को पता होनी चाहिए एक अटर्नी के साथ काम करने से पहले. किसी भी चीज़ में अगर हम अटर्नी को हायर कर रहे हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारा उस अटर्नी के साथ थोड़ा ट्रस्ट हो और थोड़ी रैपोर हो, मतलब हम उस अटर्नी से फ्रीली बात कर सकें, especially with the issue of domestic violence, क्योंकि हम लोग वैसे ही hesitate to talk about these things. तो it's important कि हम एक ऐसे अटर्नी को हायर करें जो culturally competent हो, जिसको पता हो कि भाई हमारा कल्चर कैसा है, हमारे कल्चर में चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है. इट डजंट मीन कि वो अटर्नी इंडियन ही होना चाहिए, मगर इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो अटर्नी कल्चरली कॉम्पिटेंट हो, उसको इंडियन कल्चर का पता हो. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम जिस भी अटर्नी को हायर कर रहे हों हमें ये क्लियरली पता हो कि अग्रीमेंट में हम क्या साइन कर रहे हैं. सो फॉर मी विथ माई क्लाइंट्स फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो अग्रीमेंट है वो इट्स अबाउट 2.5 pages एंड आई गो थ्रू ईच लाइन विथ माई क्लाइंट्स. तो मैं वो सारा अग्रीमेंट लाइन बाय लाइन उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी, ये नहीं करूँगी, इन चीज़ों को ड्राफ्ट करूँगी, इन चीज़ों को ड्राफ्ट नहीं करूँगी. उसमें यस और नो की एक चेकलिस्ट है. तो आई मेक श्योर कि मेरे क्लाइंट्स को पता हो कि भाई मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ और उनसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ. और उसी एग्रीमेंट में फिर मेरा फ़ी एग्रीमेंट भी होता है कि भाई वो कितनी फ़ी पे करेंगे, कब करेंगे. ऑल ऑफ दैट इज़ क्लियर इन दैट वन एग्रीमेंट. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि किसी भी हम अटर्नी को अगर हम हायर कर रहे हो तो हमें ये क्लियरली पता हो कि भाई हमारा एग्रीमेंट उस अटर्नी के साथ क्या है और हमारी फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगी. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वो अटर्नी प्रोफेशनल हो और उसको डोमेस्टिक वायलेंस के यूनिक इश्यूज़ के बारे में पता हो, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज हैं वो जनरल फैमिली लॉ के साथ इंटरैक्ट करते हैं. तो अगर अटर्नीज़ को नहीं पता होता कि भाई वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं तो देन दे कैन मिस एन अपॉर्चुनिटी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अटर्नीज़ को ये पता हो कि डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज फैमिली लॉज के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं. और अगर जैसे उनके क्लाइंट का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हो गया, वो उनके जनरल फैमिली लॉ के केस को कैसे इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स. अदर देन दैट आई थिंक कि इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि अटर्नी का जो टाइम होता है वो जनरली कॉस्ट करता है. तो अगर हमने अटर्नीज़ को ईमेल लिखनी है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 emails, अगर हम एक ईमेल में काफ़ी सारे इश्यूज लिख लें, दैट माइट बी ईजियर. और अगर वो लीगल क्वेश्चन नहीं है, अगर वो हम अपने सपोर्ट सिस्टम से वो क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं तो इट्स बेटर कि हम वहाँ जाएं. जैसे अगर मैत्री का क्लाइंट हो फॉर एग्जांपल और क्वेश्चन हो कि भाई मैं जॉब सर्च के लिए कहाँ जाऊँ, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन नेसेसरली फॉर द अटर्नी एंड इट विल कॉस्ट देम इफ दे आस्क दैट फ्रॉम द अटर्नी, क्योंकि अटर्नी इज चार्ज बाय द आवर. इट्स बेटर टू आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम मैत्री रादर देन asking it to your attorney. So things like that are important. और अगर मैं कोई अटर्नी को क्वेश्चन पूछ रही हूँ और मुझे पता नहीं हो कि भाई ये मैं पूछूं या ना पूछूं, इट्स बेटर कि अगर मैं अपने केस वर्कर से पूछ लूँ कि इज दिस अ क्वेश्चन आई शुड आस्क माई अटर्नी और कैन यू आंसर, रादर दैन द अदर वे अराउंड.
तो आपने बात की एग्रीमेंट की, क्या आप काफ़ी ट्रांसपेरेंट है अपने एग्रीमेंट को लेके, आप सब कुछ उसमें लिस्ट करती है, बट क्या ऐसे भी अटर्नीज हैं जो क्लियर नहीं लिखते हैं या क्लाइंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, तो फिर ऐसे में क्लाइंट्स अपने लिए क्या कर सकते हैं? सो आई एम श्योर कि काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हैं जो क्लाइंट्स को क्लियर नहीं होते. इफ़ दैट्स द केस, आई वुड एनकरेज कि जिस भी मामले में आप क्लियर नहीं हैं वो आप अटर्नी से पूछें कि भाई ये एग्रीमेंट में ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, इसका स्कोप कितना है, डज दिस मीन कि तुम मेरे लिए ये करोगे और ये नहीं करोगे. डोंट बी अफ्रेड टू आस्क. कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले, स्पेशली विद एन अटर्नी, तुम्हें पक्का पता होना चाहिए कि भाई ये अटर्नी तुम्हारे लिए क्या करेगा और क्या नहीं करेगा. It's also important to be very professional, to treat it as a professional relationship. क्योंकि attorneys जो हैं वो तुम्हारी legal fight कर रहे हैं, वो तुम्हारी friendly fight नहीं fight कर रहे हैं. तो attorney is not there to say कि भाई मैं तुम्हारे ex के साथ लड़ूंगा या तुम्हारे ex को ये कहूँगा वो कहूँगा. Attorney is there to say कि legally speaking तुम्हारे केस में ये हो सकता है. तो it's important to remember कि although attorneys can be friendly, they're not necessarily your friend, they're your legal ally. इमोशनल सपोर्ट नहीं ढूंढ सकते उनमें, राइट? एग्जैक्टली. इमोशनल सपोर्ट के लिए it's also important to have emotional support, मगर reach out to agencies who specialize in that, for example Maitri. आप थोड़ा और इसके बारे में बात कर सकते हैं? लाइक आई नो लॉ काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए, तो फिर ये कनेक्शन या ट्रस्ट हम श्योर हो सकते हैं कि ये अटर्नी ट्रस्टवर्दी है, या हम कनेक्शन बना सकते हैं इनके साथ? Speaking about domestic violence issue, it's important कि जो भी अटर्नी हो उसने पहले डोमेस्टिक वायलेंस में काम किया हो, उसको पता हो कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स हैं वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से इश्यूज होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज कैसे इम्पैक्ट करेंगे दूसरे फैमिली कोड के लॉज. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड एन अटर्नी जिसने स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स के साथ काम किया हो. और इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू फाइंड एन अटर्नी जो तुम्हारी बात पे मतलब यकीन कर रहा हो, जिससे तुम्हें लगे कि वो तुम्हारी बात सुन रहा है उसको और सुन रही है और उसको तुम्हारी बातों पे यकीन है, उसको फील हो रहा है कि भाई तुम्हारे साथ कैसा हुआ था. इफ़ यू डोंट हैव दैट कनेक्शन तो इट्स हार्ड टू बी ऑनेस्ट विद द अटर्नी देन. एंड if you don't have that connection and that trust, then it's hard for the attorney to represent you and it's hard for you to trust the attorney. और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये अटर्नी ने पहले डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के साथ काम किया है? कोई ऑनलाइन रिसोर्स है या उनका वेबसाइट, कैसे हम जाके पता लगाएंगे? काफ़ी सारे अटर्नीज़ की वेबसाइट्स होती हैं, उन पे हम पता कर सकते हैं. हम बार एसोसिएशन को कॉल करके बार एसोसिएशन से पूछ सकते हैं कि भाई इस अटर्नी की स्पेशलिटी क्या है. अगर अटर्नी किसी ने रेफ़र किया है तो आप जिस बंदे ने रेफ़र किया उससे पूछ सकते हैं कि भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा था इस अटर्नी के साथ. देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग कि भाई इस अटर्नी ने पहले काम किया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के साथ या नहीं, और अगर करा हुआ है तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था. आई वुड एनकरेज कि जो भी तुम्हारे पास टूल्स हैं वो हम सारे टूल्स यूज़ करें पता करने के लिए कि भाई इस अटर्नी ने पहले डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के साथ काम किया है या नहीं और उनका काम कैसा था. क्या हम अटर्नीज़ के लिए किसी ऐसी वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ पे कोई रिव्यूज़ हो, ताकि हमें पता चले लोगों का उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? येल्प पे एक्चुअली आप अटर्नीज़ को रिव्यू कर सकते हैं, और येल्प पे काफ़ी सारे अटर्नीज़ के रिव्यूज़ हैं. The other thing you can do to find an attorney is you can go to the CalBar website, और वहाँ पे जाके if you're thinking about hiring an attorney, you can look for that attorney's name. उस पर सारा लिस्ट होता है कि भी उस अटर्नीज़ के कोई प्रीवियस डिसिप्लिनरी एक्शंस थी और एनीथिंग लाइक दैट. यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर एन अटर्नी देयर. स्टेट ऑफ कैलिफोर्नियाज बार वेबसाइट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हैं जो घरेलू और डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रहे हैं, कृपया मैत्री से संपर्क करें. मैत्री की सेवाएं बिल्कुल मुफ्त और विश्वसनीय हैं. हमारी सेवाएं हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती और अन्य दक्षिण एशियाई भाषाओं में उपलब्ध हैं. यू कैन कॉल अस मंडे टू फ्राइडे 9 to 3 PM on 188-862-4874. For after hours, leave voicemail in your language. You can also email us at maitri, maitri@maitri.org. आपके एक्सपीरियंस में ऐसे क्या चैलेंजेस आपने देखे हैं जो साउथ एशियन क्लाइंट्स को सामना करना पड़ता है उनका? आप
ऐसे कुछ उदाहरण दे सकती हैं या कुछ क्लाइंट्स के बारे में बात कर सकती हैं? तो स्पेसिफिकली मैं क्लाइंट्स के बारे में तो ऑब्वियसली नहीं बात कर सकती, लेकिन मैंने काफ़ी सारे कॉमन थीम्स देखे हैं और बिगेस्ट कॉमन थीम इज़ कि हम लोग हमारे कल्चर में अब्यूज़ की डेफिनेशन डिफरेंट होती है यहाँ के कल्चर से। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वर्बल अब्यूज़ और मेंटल अब्यूज़ को भी अब्यूज़ माना जाता है। हमारे कल्चर में काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो वाली चीज़ें अब्यूज़ नहीं होती, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट। और द अदर थिंग आई हैव सीन इज़ कि इमिग्रेशन का काफ़ी इशू होता है। पीपल कम हियर और यहाँ पे अगर वो अब्यूज़ फेस कर रहे हैं तो उनको लगता है कि भाई वो आइसोलेटेड हैं, उनकी फैमिली नहीं है यहाँ पे, उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एजेंसीज लाइक Maitri to be involved with them or for them to be involved with these agencies, ताकि उन्हें ये ना लगे कि बस वो अकेले हैं और उनके अलावा और कोई नहीं है जो ऐसी चीज़ें फेस कर रहा हो। और जब किसी का लीगल केस चल रहा होता है किसी क्लाइंट का, तो आपने कुछ ऐसे खास चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां देखी है जो साउथ एशियन विक्टिम ज़्यादा फेस करते हैं मेन स्ट्रीम विक्टिम्स से? कई चीज़ें हैं। इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कई बार जब अब्यूज़र होता है यहाँ पे, अगर जैसे H1 पे हो अब्यूज़र या किसी ऐसे स्टेटस पे हो और फिर उन्होंने बुलाया हो अपने स्पाउस को और फिर वो स्पाउस अब्यूज़ फेस कर रहा हो, तो इमिग्रेशन का काफ़ी मसला हो जाता है। और फिर लोग सोचते हैं कि अगर वो रिपोर्ट करेंगे तो उनका इमिग्रेशन का मामला गड़बड़ हो जाएगा, उनको वापस जाना पड़ेगा। I feel immigration is a hold that abusers have in our community on people that they tend to abuse. So I think that is something, it's important कि हम लोगों को educate करें कि उनके पास options हैं, other immigration options हैं उनके पास, अगर उनका abuser उनको ना भी करे sponsor anymore. The other thing that is unique to our culture is कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कोई भी एक अटर्नी सारी भाषाएं नहीं बोल सकता। Yeah. Language lines are generally not free, but attorneys often have them. तो it's important कि अगर वो अटर्नी हमारी भाषा नहीं भी बोलता तो हम एक ट्रांसलेटर को लेके जाएं, ताकि हम जो भी एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वो हम सोच समझ के साइन करें कि भाई हम इस अटर्नी से क्या मांग रहे हैं, ये अटर्नी हमें क्या दे रहा है। तो it's important to have like a translator there who can help us understand. अगर domestic violence recently हुआ हो तो people are often in trauma. And when you're in trauma, it's hard for you to understand कि क्या बोला जा रहा है, information retain करनी मुश्किल होती है। It may not be a bad idea to ask the attorney, अगर आप उनका agreement घर लेके जा सकते हैं, थोड़ा और ध्यान से पढ़ सकते हैं, थोड़ा उसको और टाइम डिवोट कर सकते हैं, किसी फ्रेंड को दिखा सकते हैं कि भाई ये agreement है, इसको मैं साइन करूँ या ना करूँ। Don't be afraid to ask your attorney for some more time on that. तो आप बोल रहे हैं आपने ऐसा भी देखा है कि अब्यूज़र इमिग्रेशन को एक धमकी की तरह इस्तेमाल करते हैं? राइट। तो कुछ आपके पास ऐसे टिप्स या जनरल इंफॉर्मेशन है हमारे लिसनर्स के लिए ऐसे केस में, जो कि जिसको हम बोलते हैं मिथ्स हैं, बाहर लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन होती है इमिग्रेशन को लेकर? हाँ, एक्चुअली लोगों के पास काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन होती है इमिग्रेशन को लेकर। यहाँ पे लॉज ऐसे हैं कि अगर एक बंदा जैसे डोमेस्टिक अब्यूज़ फेस कर रहा हो तो उनके पास इमिग्रेशन की ऑप्शंस होती हैं। एक वीज़ा होता है यू वीज़ा, वो क्राइम विक्टिम्स के लिए होता है। डोमेस्टिक वायलेंस इज़ वन ऑफ द क्राइम्स जो क्वालिफाई करता है एक बंदे को यू वीज़ा के लिए। तो अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है तो वो यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू वीज़ा में द प्रॉब्लम इसकी उसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है। देयर इज़ अनदर वीज़ा, वावा वीज़ा, VAWA, इट स्टैंड्स फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट। उसमें थोड़ी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं यू वीज़ा से, लेकिन वो भी एक ऑप्शन है जो लोगों के पास हैं अगर उनका इमिग्रेशन स्टेटस उन्हें रोक रहा है अब्यूज़ रिपोर्ट करने से। In the South Asian community, immigration I know is a big issue. हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग हैं, including myself, जो यहाँ पे इमिग्रेट हुए हैं। It's important to remember कि यहाँ पे जो फैमिली लॉ की कोर्ट होती हैं वो इमिग्रेशन स्टेटस पूछती नहीं है, उन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, and you can still seek a protective order regardless of your immigration status. तो हमें ये नहीं लगा होना चाहिए कि भाई इससे हमारी इमिग्रेशन स्टेटस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या अगर कोर्ट ने पूछा कि हमारा इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, क्योंकि फैमिली कोर्ट में इमिग्रेशन स्टेटस आना काफ़ी मुश्किल होता है। एक और चीज़ जो हम मैत्री में अपने क्लाइंट्स के साथ काफ़ी देखते हैं,
मेनली कस्टडी केस को लेकर वो काफ़ी परेशान होते हैं कस्टडी केसेस को लेकर, चाहे वो अब अपने अब्यूज़र से दूर हो चुके हैं, घर से बाहर है, अपनी अलग दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो क्योंकि कस्टडी केस चल रहा है उनका, तो वो उनको ऐसा लगता है वो अभी भी उस बंदे की पकड़ में है। ऐसे केसेस में आप क्या सलाह देंगी, क्या कर सकते हैं हमारे वो क्लाइंट्स जो कस्टडी केसेस से गुजर रहे हैं? So that's actually something very common क्योंकि custody orders can be changed at any time. जब तक बच्चा 18 तक का नहीं हो जाता तब तक custody order, visitation order change हो सकते हैं. तो it's very common कि एक abuser जो है वो custody order धमकी की तरह use करे against someone that they're abusing. I would suggest कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो अपने support system को reach out करें, like take an advocate with you. अकेले कोर्ट में ना जाएं, एक advocate के साथ जाएं या एक friend के साथ जाएं. And then just educate themselves on कि भाई laws क्या क्या हैं और उनकी साइड पे क्या laws हैं और उनके against क्या laws हैं, ताकि जब वो कोर्ट में जाएं तो उन्हें कोई गलत information देके कुछ और ना करवा ले. कई बार abusers can also use the custody issue as a way to continue abusing. मतलब कि अगर बार बार कोर्ट में फाइल कर रहे हों या बार बार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हों तो वो एक कंट्रोल टैक्टिक होती है जो अब्यूज़र यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए विक्टिम्स को. सो दे कंट्रोल थ्रू द किड्स. इन दैट केस इफ पीपल कैन यूज वन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एजेंसीज टू हैव एन एडवोकेट गो विद देम ताकि वो अकेला ना फील करें, दैट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल. इट्स ऑलवेज हेल्पफुल कि जब तुम कोर्ट जाओ तो तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो कि भाई उस दिन कोर्ट में क्या होना है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द लॉज, अबाउट द हियरिंग्स एंड व्हाट्स गोना हैपन. आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स. उससे थोड़ा बंदे को लगता है कि भाई वो अनअवेयर नहीं है जब वो कोर्ट में जा रहे हो, उनके पास नॉलेज होती है. या सो विद कस्टडी एंड विजिटेशन द कोर्ट्स हियर बिलीव कि the child has a right to see both the parents and that it's in the best interest of the child to see both the parents. Unless there is, like अगर abuse का कोई issue है या something like that, safety का concern है, तब court supervised visitation order कर सकती है या limited visitation order कर सकती है. लेकिन generally speaking, each parent will get to see the child. ये हो सकता है कि अगर जैसे हम अग्री करके दूसरी साइड से कि ओके हम लोग ये वाला स्केड्यूल बना लेंगे, ये वाले दिन विजिटेशन होगी, ऐसी कस्टडी होगी, थिंग्स लाइक दैट, दैट्स वन थिंग. लेकिन जज जनरली ऑर्डर करेगा कि दोनों पेरेंट्स बच्चे को देख सकें, किड्स को देख सकें, बिकॉज इट्स कंसिडर्ड कि दैट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द किड. तो आई नो कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वी माइट फील कि सारी कस्टडी हमारे पास होनी चाहिए या अगले दूसरी साइड को कोई भी कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए, विजिटेशन नहीं मिलनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे वैसे ऑर्डर्स जनरली नहीं होते. यहाँ पे जनरली स्पीकिंग दोनों पेरेंट्स बच्चों से मिल सकते हैं, बच्चों से विजिट कर सकते हैं, कस्टडी शेयर कर सकते हैं. हमारी कम्युनिटी में थोड़ा ऐसा देखा है कि लोगों को लगता है कि माँ का ज़्यादा राइट है या माँ को कस्टडी मिलनी चाहिए. That's true, and that's one of the big differences I think between जो इंडिया में लॉज हैं और जो यहाँ पे लॉज हैं, क्योंकि इंडिया में जनरली डिफ़ॉल्ट होता है कि माँ को मिलेगी कस्टडी. यहाँ पे जनरली वो वाला डिफ़ॉल्ट नहीं होता. लेकिन यहाँ पे ये भी है कि इफ़ अ पर्सन इज़ फाउंड टू बी अब्यूसिव तो जनरली द प्रिजम्पशन इज़ कि उनको कस्टडी नहीं मिलेगी, उन्हें विजिटेशन मिलेंगी. दैट डजंट मीन कि उनको कभी भी कस्टडी नहीं मिल सकती. इट्स जस्ट कि जब तक कोर्ट को ये ना लगे कि भाई बच्चे उनके साथ सेफ हैं तब तक उन्हें विजिटेशन ही मिलेगी. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ सुपरवाइज्ड विजिटेशन जो यहाँ पे ऑर्डर करी जाती है, वेयर द पेरेंट हु इज़ विजिटिंग विद द चाइल्ड इज़ सुपरवाइज्ड बाय समवन ड्यूरिंग द विजिट. अब हम मैत्री में अपने काम में देखते हैं कि सबकी सिचुएशन काफ़ी अलग होती है, एक दूसरे से केसेस अलग अलग होते हैं. तो ऐसे में आप क्या राय देंगी हमारे लिसनर्स को? क्या हर किसी को अटर्नी हायर करने की ज़रूरत है? नहीं, हर किसी को अटर्नी हायर करने की ज़रूरत नहीं है. कई लोग आर ओके विद कोर्ट प्रेप. तो और इस काउंटी में, सैंटा क्लारा काउंटी में, वी आर वेरी लकी कि हमारे पास काफ़ी सारी रिसोर्सेज हैं. यहाँ पे कोर्ट हाउस में ही, फैमिली कोर्ट हाउस में एक सेल्फ हेल्प सेंटर है. वहाँ पे सारे पेपर वर्क्स अवेलेबल होते हैं जो भी चाहिए होते हैं, डिवोर्स फाइल करने के लिए या कस्टडी वगैरह मॉडिफाई करने के लिए या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल करने के लिए. सारे पेपर वर्क वहाँ होते हैं. वहाँ पे अटर्नीज हैं जो हेल्प कर सकते हैं. वो लीगल एडवाइस नहीं दे सकते लेकिन वो तुम्हें फॉर्म्स दे सकते हैं कि भाई कौन कौन से फॉर्म्स चाहिए, कहाँ पे फाइल करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन. और यहाँ पे हमारी काउंटी में देयर आर आल्सो 3 फैमिली जस्टिस सेंटर्स. दे आर डिफरेंट दैन द फैमिली जस्टिस सेंटर कोर्ट हाउस. फैमिली जस्टिस सेंटर कोर्ट हाउस इज़ द वन on North 1st Street in San Jose. लेकिन
3 स्टैंड अलोन फैमिली जस्टिस सेंटर्स हैं इस काउंटी में। एक होता है वेंसडे को, एक होता है थर्सडे को और एक होता है फ्राइडे को। वो सारे तीनों 9 to 5 हैं और तीनों वॉक इन बेसिस पे हैं। और वहाँ पे लोग जाके एक फैमिली लॉ अटर्नी से बात कर सकते हैं, इमिग्रेशन अटर्नी से बात कर सकते हैं। वहाँ पे DA के ऑफिस से बंदे होते हैं, विक्टिम सर्विसेज, लीगल एडवोकेट्स। देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज देयर एंड देयर ऑल फ्री। द वन ऑन वेंसडे आई थिंक इज इन मॉर्गन हिल, द वन ऑन थर्सडेज इज इन सैन होजे एंड द वन ऑन फ्राइडे इज इन सनीवेल। और इन सब की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है। DA के ऑफिस की वेबसाइट पे अगर बंदे जाएं तो वहाँ पे सारी ये फैमिली जस्टिस सेंटर की इंफॉर्मेशन है, और आल्सो कोर्ट की वेबसाइट पे ये सारी एजेंसीज और रिफरल्स की इंफॉर्मेशन है। कोर्ट की वेबसाइट है scscourt.org। वहाँ पे जाके आप ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे है, अवेलेबल है, और वहाँ आप देख सकते हैं। So you don't necessarily need an attorney. People can go to one of these agencies or one of these resources and find out कि भाई कोर्ट प्रोसेस कैसी होती है, उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, जज क्या पूछेगा और उन्हें कैसे जवाब देना है, and all that, ड्रेस कैसे होके जाना है, things like that. So you can go to any of those referrals and get that information. और अगर तुम्हारा केस fairly straightforward है, then I don't think कि people need an attorney. अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हैं जो घरेलू और डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रहे हैं, कृपया मैत्री से संपर्क करें। मैत्री की सेवाएं बिल्कुल मुफ्त और विश्वसनीय हैं। हमारी सेवाएं हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती और अन्य दक्षिण एशियाई भाषाओं में उपलब्ध हैं। You can call us Monday to Friday 9 to 3 p.m. on 188-862-4874. For after hours, leave voicemail in your language. You can also email us at maitri, maitri@maitri.org. एक और चीज़ जो आई गेस हम सब ने काफ़ी सुनी है कि अटर्नीज़ के साथ काम करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है, फीस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, या तो आप कुछ अंदाज़ा दे सकती हैं लिसनर्स को ये कितना महंगा हो सकता है, एक केस पे कितना खर्चा हो सकता है किसी का? वो अंदाज़ा देना एक्चुअली मुश्किल है, क्योंकि अटर्नीज़ डिफरेंट चार्जेस करते हैं, उनके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। कई अटर्नीज़ आवरली चार्ज करते हैं, कई फ्लैट रेट पे काम करते हैं। और अगर तुम्हारा केस मतलब जैसे कॉम्प्लिकेटेड है और अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं या प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो उसमें शायद ज़्यादा पैसे लगें। और अगर वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, अगर बच्चे नहीं हैं इन्वॉल्व या प्रॉपर्टी नहीं है इन्वॉल्व, तो शायद केस थोड़ा ईजियर हो और फटाफट हो जाए। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द केस कि भाई कॉस्ट कितनी होनी है। मगर दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जो अग्रीमेंट साइन करें वो क्लियर हो उस अग्रीमेंट में कि वो अटर्नी हमें कैसे बिल करेगा और किस रेट पे बिल करेगा। तो अटर्नी पे भी डिपेंड करता है काफ़ी। अटर्नी पे काफ़ी डिपेंड करता है, यस। Another way to try to keep a handle on the cost is कि it's important कि हम अपने अटर्नी से कहें कि भाई हमें मंथली बिलिंग स्टेटमेंट या एवरी 6 weeks बिलिंग स्टेटमेंट दी जाए, ताकि हमें पता रहे कि हमारे कितने पैसे लग रहे हैं और हमारा बजट कितना है। It will also help people narrow down the points that they want to fight for and kind of keep their cost in mind. और अग्रीमेंट में ये भी लिखा होना चाहिए कि भाई अगर हम पैरालीगल के साथ काम कर रहे हैं या रिसेप्शनिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो उनका चार्ज कितना है। अगर हमने उनकी भी सर्विसेज के लिए पे करना है तो किस हिसाब से वो चार्ज होगा। तो अग्रीमेंट में ये सब कुछ सारा क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सा अटर्नी, जैसे अगर हम एक फर्म के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ पे 2-3 अटर्नीज़ हों तो 2-3 अटर्नीज़ के डिफरेंट रेट हो सकते हैं। तो उस अग्रीमेंट में ये क्लियर लिखा होना चाहिए कि अगर हम इस अटर्नी के साथ काम कर रहे हैं तुम्हारा कितना रेट है, इसके साथ काम कर रहे हैं तो कितना रेट है, अगर पैरालीगल हमारे केस पे काम कर रही है तो वो कैसे चार्ज कर रहे हैं। ऑल ऑफ दैट शुड बी क्लियर इन द अग्रीमेंट। द थिंग अबाउट कॉस्ट इज़ कि द कॉस्ट ऑफ अ लीगल केस कैन बी एज हाई एज यू वांट इट टू बी। इट्स इम्पॉर्टेंट कि लीगल केस में अगर हमारा मतलब कोई लीगल केस चल रहा हो तो हमें थोड़ा इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई हमारी पॉकेट बुक कितनी है और हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं पे करना। एंड देन इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि हम किन चीज़ों पे फाइट कर रहे हैं, कि भाई ये चीज़ वर्थ है फाइट करने की कि नहीं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू काइंड ऑफ हैव दैट क्लियर टू।
I think that's where, the attorney not being your friend also comes in. क्योंकि attorney नहीं emotionally attached होता उन चीज़ों से जिन चीज़ों से हम emotionally attached होते हैं. तो अगर attorney तुम्हें कह रहा है कि भाई ये चीज़ worth नहीं है fight करने की और जो पैसे तुम लगाओगे वो worth नहीं होंगे, it's important to think about that with a clear head. So instead of fighting for everything, maybe we can fight for some things and let some of the things go. Especially if we don't want the cost to start climbing up too much. These are all things that, depend on case-by-case basis. क्योंकि मैं किसी को नहीं कह सकती कि भाई इन चीज़ों को की वरी ना करो, इन चीज़ों की वरी करो. So it's important for us to think about those things, about what things are important to us and what are we willing to fight for and spend money fighting for. And then move forward with that in mind. तो आप बोल रहे हैं कि अटर्नी जैसे आपको सलाह दे रहा है तो उसको ध्यान में रखें, बट कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स किसी अटर्नी के साथ काम कर रहे हैं पर कोई ना कोई वजह से उनको अपने अटर्नी का या तो कह लो कि काम करने का तरीका नहीं पसंद आया या फिर उन्हें लगा कि अटर्नी उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं और खुद ही डिसीजंस लिए जा रहे हैं, या फिर यहाँ तक कि उनको कभी ऐसा भी लगता है कि ये मेरा अटर्नी है बट ये दूसरी साइड के साथ काम कर रहे हैं. तो एक क्लाइंट के पास क्या ऑप्शन होते हैं ऐसे केसेस में? तो यू कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट योर अटर्नी आउट. अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई अटर्नी तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा या तुम्हारे जो गोल्स हैं वो ये अटर्नी नहीं हेल्प कर रहा मीट करने में, तो यू कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट एन अटर्नी आउट. यू कैन फाइल what's called a substitution of attorney. Let the attorney know कि भाई हमारा जो agreement है वो workout नहीं हो रहा अभी and I want to part ways. तो वो substitution तुम file कर सकते हो. Actually it's very important to file the substitution अगर तुम उस attorney के साथ काम नहीं करना चाहते anymore, क्योंकि जब एक attorney केस लेता है या लेती है तो कोर्ट में जो पेपर फाइल होता है उससे कोर्ट को ये पता लगता है कि भाई ये अटर्नी इस बंदे के साथ काम कर रही है या काम कर रहा है. जब तक कोर्ट को ये ना बताया जाए कि अब ये अटर्नी उस केस पे नहीं है, तब तक वही वाला अटर्नी कोर्ट को लगता है कि भाई इस केस पे है. दैट मीन्स कि अगर मेरे केस पे अगर कोई अटर्नी हो और मैंने उस अटर्नी का सब्स्टिट्यूशन नहीं फाइल किया हो तो मैं अपना पेपर वर्क खुद नहीं फाइल कर सकती, क्योंकि कोर्ट कहेगी कि तुम्हारी एक अटर्नी है उससे कहो कि फाइल करे. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि एज सून एज यू नो कि भाई मेरा और इस अटर्नी का अभी नहीं चलना, दैट यू फाइल अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अटर्नी फॉर्म. और ये प्रोसेस जो है अटर्नी चेंज करने के लिए सब्स्टिट्यूशन फॉर्म, ये कॉम्प्लिकेटेड है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है? नहीं, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है. 2 पेजेस का फॉर्म है आई थिंक. उसमें तुम ये बस फिल करो कि भाई पहले ये वाला अटर्नी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा था, अब मैं या खुद रिप्रेजेंट अपने आप को कर रही हूँ या कोई और अटर्नी कर रहा है, एंड देन यू फाइल दैट विद कोर्ट. और अगर किसी क्लाइंट और अटर्नी में कोई इंसिडेंट हो गया है, बात थोड़ी बढ़ गई है, तो क्या क्लाइंट के पास कंप्लेंट करने का ऑप्शन है? कहाँ पे वो कुछ कंप्लेंट कर सकते हैं? They can always call the bar association. तो सेंटा क्लारा काउंटी में सेंटा क्लारा काउंटी जो बार एसोसिएशन है उन्हें कॉल कर सकते हैं. ये कह सकते हैं कि भाई इस अटर्नी ने ये काम ठीक से नहीं किया या हमारा ये एग्रीमेंट था उसने ये नहीं किया, things like that. It's important to hold attorneys accountable. So people can always call the bar association. People can also go on online forums like Yelp and Google reviews and stuff. वहाँ पे भी जाके attorneys को रिव्यू कर सकते हैं. स्टेट बार की वेबसाइट से ये फ़ायदा है कि उस वेबसाइट पे ये भी होता है इट लिस्ट कि अगर इस अटर्नी के कोई और प्रीवियस डिसिप्लिनरी एक्शंस थे तो वो भी वहाँ जाके देख सकते हैं. हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी बात है, बहुत कॉमन है, और नए देश का लॉ और कानून काफ़ी लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है. और हमने देखा है कि अक्सर वो दुविधा में होते हैं कि अपने केस को लेकर, तो जब वो अटर्नी को हायर करने जाते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो उनको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए? कुछ टिप्स या ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो उनको पता होना चाहिए? सो रेड फ्लैग्स इज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग्स हो सकती हैं, और अगर हमें लगे कि भाई ये कैसे कोई भी रेड फ्लैग्स हो रहे हैं तो देन वी शुड थिंक ट्वाइस अबाउट हायरिंग अ पर्टिकुलर अटर्नी. सम ऑफ द रेड फ्लैग्स आर कि अगर वो अग्रीमेंट नहीं एक्सप्लेन कर रहे डिटेल में, दैट इज जनरली अ रेड फ्लैग. डोंट बी अफ्रेड टू आस्क एन अटर्नी कि अग्रीमेंट में क्या क्या है और वो हमारे लिए क्या क्या करेंगे और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर वो ये नहीं एक्सप्लेन कर रहे तो दैट्स अ पोटेंशियल रेड फ्लैग. अगर वो अटर्नी अगर क्लाइंट को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, दैट्स ऑल्सो रेड फ्लैग. क्लाइंट को रिस्पेक्ट से नहीं ट्रीट किया जा रहा. अगर हमें मतलब जैसे अगर मैं कोई अटर्नी हायर करूँ और मुझे ये नहीं लग रहा कि भाई वो मेरी तरफ रिस्पेक्टफुल है, दैट्स ऑल्सो रेड फ्लैग. अगर मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज नहीं दी जा रही
if you have to fight for the copies of your documents, that's generally not a good indicator. Other than that, अगर attorney तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे पूरी तरह से कि भाई अगली साइड दूसरी साइड क्या कह रही है, क्या प्रपोज कर रही है और क्या नेगोशिएट कर रही है, और तुमसे पूछे बगैर अगर अटर्नी नेगोशिएट कर रहे हैं दूसरी साइड से, सो दैट्स ऑल्सो अ रेड फ्लैग. यू शुड बी इन्वॉल्व्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केस. इट्स ट्रू कि अटर्नी को लीगल सिस्टम के बारे में ज़्यादा पता है, और अटर्नी को शायद ये भी पता हो कि भाई हाउ अ पर्टिकुलर जज टेंड्स टू रूल. तो it's true कि the attorney will lead the legal process, लेकिन you have to feel कि भाई you are also very involved in the entire process. कि जो सारी process हो रही है उसमें तुम्हारा input है और तुम्हें पता है कि next stage क्या होगी and all of that. The biggest red flag I think कि अगर तुम्हें लग रहा हो कि भाई तुम्हारा attorney abusive है तुम्हारी तरफ या disrespectful है या तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, those kinds of things are also red flags. मगर it's important to keep in mind कि attorney is not your therapist. तो अगर attorney कहे कि भाई ये जो तुम मेरे से भी बोल रहे हो ये this is more for your therapist, not for your attorney, this doesn't have a legal question, that's one thing. मगर if you're feeling कि attorney तुम्हारी respect नहीं कर रहा, that's a different. या outright disrespect कर रहे हैं आपको किसी भी चीज को लेकर. Exactly. लेकिन the biggest red flag for me is when attorneys guarantee a result. किसी भी attorney से अगर तुम बात करो किसी भी चीज, not just about domestic violence मगर about any issue, and the attorney is saying कि they can guarantee a result, that is a pretty big red flag. क्योंकि ultimately it's not up to the attorney, it's up to the judge to decide how a case goes. Unless you are going to negotiate with the other party and come to an agreement, if your case goes to the judge, no attorney can guarantee कि judge कैसा order बनाएगा या कौन से order पे sign करेंगे. So if an attorney is guaranteeing you a result, that's a pretty big red flag. The other red flags are कि अगर तुम मतलब जैसे attorney की background पे check कर रहे हो and they're not licensed to practice in the state that you are in, that's a red flag. So in California, for example, attorneys को California में licensed होना चाहिए California के state laws practice करने के लिए. So it's a red flag if the attorney you're talking to is not licensed. That means कि he or she might give the case to a different attorney, that you may not work with the attorney that you think you're working with. So make sure कि जो भी attorney तुम hire करो वो licensed हो state of California में. And then it's also important कि especially अगर domestic violence का issue है तो it's important again कि तुम उस attorney को hire करो जिसने domestic violence का काम किया हो, उनकी practice में domestic violence हो के background में. क्योंकि there are safety issues that come up in domestic violence that are unique to domestic violence. For example, काफ़ी सारे attorneys सोचते हैं कि protective order लेना इतना important नहीं होता, लेकिन domestic violence के issues में अगर safety concern है तो protective order लेना is very important in my view. तो it's very important कि जो भी attorney हो उनको ये पता हो कि भाई domestic violence के unique issues क्या हैं और protective order लेना important क्यों है. तो अभी हमने थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात की, बट ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर या इन जनरल हमको पता होनी चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में? Domestic violence is actually one of the most dangerous things that people face, but it's largely a woman's issue, but it's not only a woman's issue. Men भी होते हैं domestic violence survivors, victims. और domestic violence actually हम लोग सोचते हैं कि ये घर की बात है, ये घर की बात नहीं होती, ये बहुत dangerous बात होती है. You know, it's the number one killer for women. The people who kill women most are the people who live with them. So it's not something to be taken lightly. और उसका trauma बहुत long term होता है. I know कि हमारे culture में हम सोचते हैं कि अगर मार पिटाई नहीं होती तो domestic violence नहीं है, लेकिन जो गाली गलौज होता है, कलेश होते हैं घर में, वो भी domestic violence होते हैं और उनका impact काफ़ी long term होता है. हम ही पे नहीं, हमारे बच्चों पे भी और हमारी family पे भी. तो it's important to keep all that in mind जब हम legal issues face कर रहे हो domestic violence से related, कि domestic violence is not just a family issue, it's a long-term issue and it's in our culture I think it's a social issue. I think कि हमको सबको ये stand लेना है domestic violence के against कि किसी भी तरह का violence, चाहे वो verbal हो या mental हो या emotional हो, किसी भी तरह का violence is not okay and it should not be accepted. बिल्कुल सही कहा आपने निष्ठा. हमारे जो आज बे एरिया के लिसनर्स हैं उनके लिए आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं जो उनके साथ आप शेयर कर सकती हैं? So actually we're very lucky in Bay Area कि हमारे पास काफ़ी सारी resources हैं domestic violence victims के लिए. Maitri is a great resource. यहाँ पे you know people can call the hotline. There are
There are therapy groups. They can talk to a legal advocate. They can talk to an advocate in general. There are many agencies that do a lot of the same work. YWCA एक agency है जो similar work करती है. Community Solutions does a lot of the same work. Asian Americans for Community Involvement, AKI, does similar work as well. Next Door is also another agency that works with domestic violence survivors. There are also the family justice centers that I had mentioned earlier that work with the district attorney's office and provide free services. वहाँ पे इमिग्रेशन अटर्नी होता है, फैमिली लॉ अटर्नी होता है, DA के ऑफिस से एक अटर्नी होता है, विक्टिम सर्विसेज होती हैं. And then there is the national hotline. The number is 1-800-799-7233. उनकी एक वेबसाइट भी है www.thehotline.org. उस वेबसाइट पे काफ़ी सारे resources हैं, including resources about what is domestic violence, what healthy relationship looks like, things like that. It's a good resource to go check out if you're wondering whether what you are going through is indeed domestic violence. The other resources that people can also access are, there are several, काफ़ी सारी law firms हैं इस area में, Santa Clara County में, जहाँ पे लोगों को free legal service मिल सकती है, at least free legal advice मिल सकती है. Some of these are like Bay Area Legal Aid, Pro Bono Project. There's also the Law Foundation, Legal Aid Society of Santa Clara County. People can look up their information and call those places. वहाँ पे अगर उनको representation नहीं मिलती तो at least they can get some legal advice. थैंक यू निष्ठा, ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और हमारे शो पर आने के लिए. आपने अपना तजुर्बा और अपनी सारी जानकारी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की और मुझे उम्मीद है उन सबको ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल लगी होगी और हम सब ने आज कुछ नया सीखा आपके इस शो पे. और हमारे सभी लिसनर्स को मैत्री शो बिटवीन फ्रेंड्स पे ट्यून इन करने के लिए शुक्रिया. Maitri does not endorse any businesses, including but not limited to legal attorneys, financial advisors, and tax consultants that may be advertised before or after the show. Listeners are advised to use their own discretion. This show is for informational purposes only and is not to be construed as legal advice. Always consult an attorney for legal advice. Views expressed by guests of the radio show are individual opinions and not endorsed by Maitri. अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हैं जो घरेलू और डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रहे हैं, कृपया मैत्री से संपर्क करें. मैत्री की सेवाएं बिल्कुल मुफ्त और विश्वसनीय हैं. हमारी सेवाएं हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती और अन्य दक्षिण एशियाई भाषाओं में उपलब्ध हैं. यू कैन कॉल अस Monday to Friday 9 to 3 p.m. on 188-862-4874. For after hours, leave voicemail in your language. You can also email us at maitri, maitri@maitri.org. Listeners, you are on the Maitri Show Between Friends Conversation with Maitri, and today you were listening Nishtha Jolie for sharing her wonderful resources and information. Thank you, Nishtha, for coming to our show and sharing this valuable information with our listeners. Also, I would like to thank Daman Tiwana for having this conversation with Nishtha in Hindi. Right now, I would like to share some information that we got from the State Bar of California on how one can find and hire the right lawyer. And I will share some questions and the answers to it. The question is, how will you know which lawyer is best for you? So before you meet with any lawyers, do some comparison shopping. Make a list of several lawyers. Call each lawyer and ask questions that might help you make your decision. Some lawyers may prefer to meet with you briefly in person. Ask about the lawyer's experience and when he or she last handled a similar case. Ask if he or she will meet with you once free of charge before you make your hiring decision. If there is a fee for such a consultation, find out how much it will be. In any case, do not expect a long first meeting. 15 minutes to a half an hour is average. Write down everything that the lawyers have to say. Take time to think it over.
Then make another appointment with the lawyer who seems right for you. The next question we can ask, discuss that how would you know whether you should hire the lawyer? It depends on how you feel after your first meeting with the lawyer. Before the meeting, jot down key points in your case to share with the lawyer. Bring the names, addresses, and telephone numbers of everyone connected with the case. In addition, bring all papers related to the case. Some lawyers may want to review the papers before your meeting. Ask about any similar cases that the lawyer has handled, and keep in mind that age may have nothing to do with the lawyer's ability to help you. A lawyer who has practiced 20 years may have less experience with your type of problem than a lawyer who is 3 years out of law school. In addition, find out if the lawyer will handle your case personally. If the lawyer intends to have another member of the law firm handle any part of the case, you might want to talk to the second lawyer as well. Be wary of any attorney who guarantees result. Most lawsuits and other legal work are not sure things. However, a lawyer should be able to point out the strengths and weaknesses of your case. Find out how long the lawyer expects your case to take, what steps will be involved, and what and how you will be charged. If you don't understand something, ask for a simple explanation. In addition, you can check the State Bar's website, that is www.calbar.ca.gov. Again, www.calbar.ca.gov. To find out if the lawyer has ever been publicly disciplined by the bar, simply go to attorney search and attorney/member search. Then type in the attorney's name or bar number. That is very important. You may decide to hire the lawyer after your first meeting, or you may want some time to think about it. Ask yourself a few questions. Will you be comfortable working closely with this lawyer? Do you think the lawyer has the experience and skill to handle your case? Do you understand the lawyer's explanation of what your case involves? Does the fee seem reasonable? If your answer to one or more of these questions is no, then you probably should talk to another lawyer. If all of your answers to these questions are yes, you may have found the right lawyer for you. Another important question we would like to discuss here, that is also from the same resource, the State Bar of California, that how can you build a successful lawyer-client team? You could make sure that you and your lawyer have the same goals. You understand and are comfortable with the lawyer's working style. Get a clear picture of the expected timetable in your case, when you can expect significant developments, and when and how often the lawyer intends to contact you. You provide the lawyer with the information and documents necessary to understand your case. You understand and agree with the lawyer's billing practices. If you have questions or concerns about your legal matter, you express them to your lawyer and listen to his or her responses. You raise questions about your bill in a timely manner. If appropriate, submit your questions to the lawyer in writing. These simple tips should help you develop a positive and productive working relationship with your lawyer. Maitri does not endorse any businesses, including but not limited to legal attorneys, financial advisors, and tax consultants that may be advertised before or after the show. Listeners are advised to use their own discretion. This show is for informational purposes